Hello everybody. Today I want to discuss the improvements in food resources. As you know, we have already discussed the irrigation. Irrigation is the process of supplying of water to crop plants by means of canals, wells, reservoirs, tube wells, that is known as irrigation. Okay, and what are the advantages of irrigation that we have discussed earlier. Some other advantages of irrigation are also there, that the supply of water, mainly the supply of water by irrigation is regular, then regular and reliable, then where as rainfall is often seasonal or unpredictable. Actually, when the plants need water, then we will supply water at that time. Irrigation water supply by rivers in floods carries silt, and which adds to soil of fields, enhancing fertility and crop yield also. Okay, and with the irrigation, cultivation can be done around the year and not during the rainy season only, because we can provide water at different intervals of time according to our wish. Okay, now next, in desert area, the constant flow of irrigation water through the soil helps to reduce the salinity of soil. However, if the water is allowed to evaporate in the field, so salt content in the soil will be increased. Okay, and modern multi-purpose dams not only provide water for irrigation but also help to control the floods, generate hydroelectric power, and improve the navigability of the rivers. So these are the different advantages of irrigations. Now I want to explain the factors controlling irrigation. So what are the factors controlling irrigation? So let us write factors controlling irrigation. Okay, factors controlling irrigation. First is crop based irrigation. Actually, the irrigation or the water requirements of crop plants depends on the two factors. What are these factors? Actually, first factor is irrigation dependent on the nature of the crop plants, like crop based irrigation, and second, irrigation dependent on the nature of the soil of the crop field, means soil based irrigation. So what are the two factors? First factor is, you can write the factors. First factor, that is irrigation dependent on the nature, irrigation dependent on the nature of the crop plants, nature of the crop plants, of the crop plants. इसको आप बोल सकते हो दूसरा, इस इरिगेशन को क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, क्रॉप बेस्ड इरिगेशन. ओके, फर्स्ट फैक्टर तो क्रॉप बेस्ड इरिगेशन हो गया. सेकेंड फैक्टर जो है ये होगा soil based irrigation, means the irrigation dependent on the nature of the soil. Okay, so on the nature of the soil of the crop, of the soil of the crop. Got it? So soil of the crop field बोल सकते हो आप, एंड इसका दूसरा नाम होगा
soil based irrigation. Okay, so you can write that soil based irrigation. Okay, so that is soil based irrigation. Got it? So we'll discuss these two factors in detail. First जो है crop based irrigation है, so how it will be depend, means how this controlling the irrigation. Crop based irrigation, as you know that water requirements of different crops are different during the various stages of their growth and maturation. Ripening है या growth हो रही है तो that is different. Some crop plants require more water while others need less water. पता है कुछ क्रॉप में ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ क्रॉप को कम पानी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल पैडी क्रॉप इज ट्रांसप्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर, वेटलैंड्स में स्टैंड पानी बहुत ज़्यादा चाहिए एंड रिक्वायर्स कंटिन्यूस वाटर सप्लाई. पैडी को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए. whereas अदर क्रॉप्स है जैसे वीट है, ग्राम है, कॉटन है, दे रिक्वायर लेस वाटर. And for cereals such as wheat, then irrigation is required before plowing in the field. ठीक है, सो ये अलग अलग जो है वाटर का बिफोर टिलिंग है या बिफोर प्लोइंग है आपको पानी देना है. तो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग है, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन है, तो दैट इज द डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स. ठीक है, सो इरीगेशन डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, मतलब क्रॉप बेस्ड इरीगेशन हो गया. क्रॉप, किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को फ्लावरिंग टाइम पे चाहिए, किसी को बिफोर फ्लावरिंग चाहिए, या फिर डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन के टाइम में चाहिए. सो ये इस तरह डिपेंड कर रहा है. सेकेंड है सॉइल बेस्ड इरीगेशन. सॉइल बेस्ड इरीगेशन में इरीगेशन ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल in which the crop is grown. Got it? So the crops grown in sandy soil need irrigation more frequently. बार बार पानी चाहिए उनको frequently. Then whereas the frequency of irrigation is comparatively less for crops in clay soil. clay soil में अगर grow कर रहे हो आप तो वहाँ पानी कम चाहिए उससे कंपेयर करके. ठीक है, सॉन्डी, as you know that sandy soil है वो पोरस होती है तो उसमें पानी इजीली अंदर जाएगा पोरस की वजह से, पोरस नेचर की वजह से. सो बिकॉज ऑफ पोरस नेचर सैंडी सॉइल कैसी है, परमिएबल, हैज़ हाई परमिएबिलिटी, वाटर इजीली अंदर आएगा. व्हेन द क्रॉप प्लांट्स स्टैंडिंग ऑन ए सैंडी सॉइल आर इरीगेटेड देन वाटर क्विकली परकोलेट्स डाउन इनटू द सॉइल. आसानी से जल्दी से अंदर जाएगा, परकोलेट्स करेगा. एंड क्रॉप प्लांट्स आर नॉट adequate, means they are not able to absorb adequate amount of water. Got it? So due to the poor water holding capacity or retaining capacity of the sandy soil, the crops cultivated in sandy soil need more frequent irrigation. बार बार उनको पानी देना पड़ेगा. Okay, frequently. Now in contrast to sandy soil, clay soil is much less permeable है. ठीक है, then what happens? So it can retain water for much longer time. So when the crops grown in clay soil are irrigated, जब उनको irrigate करेंगे तो water persist in the soil for a longer time, and as a consequence जो plants grown हो रहे हैं clay soil में, they absorb this water in adequate amount, and thus due to good that retaining water retaining capacity of the clay soil, the crops cultivated in clay soil need irrigation less frequently. Got it? So इनको less frequently चाहिए. आप एक बार पानी दे दोगे then that water will be percolates into the soil. और water holding capacity अच्छी है clay soil की, so उसको frequently ज़रूरत नहीं है. Now irrigation systems, second part है वो irrigation system है. कौन कौन से irrigation systems है? So let us write the irrigation systems. Okay, irrigation systems. Irrigation systems कौन कौन से हैं? Actually our country is blessed with large water, okay, and land resources with variety climatic conditions, and under such
circumstances, various types of irrigation systems have been adopted to supply water to the agriculture lands. Some most commonly used irrigation systems are like canal system. So you can write the canal system, canals hai, tanks hai, then wells hai. So you can write that canals hai, ठीक है, tanks हैं, then wells हैं, आफ्टर दैट रिवर है, रिवर लिफ्ट सिस्टम बोलते हैं जिसको, तो रिवर लिफ्ट सिस्टम हो गया, रिवर लिफ्ट सिस्टम, रिवर लिफ्ट सिस्टम, तो रिवर लिफ्ट सिस्टम एंड लास्ट है जो वो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, गॉट इट. सो फिफ्थ इज ड्रिप and sprinkler system. Got it? So canals के through पानी irrigate करेंगे, means we will irrigate the crops with the help of canals है. In canal system में जो human made canals होंगी, they receive water from one to another reservoirs or from the rivers. Okay, it is usually as elaborate and extensive irrigation system. पता है आपको. Thus main जो canal है is distributed into branch canals, and branch canals further distributed or field channels mainly, and these unlinked field channels may serve individual field to group of the field. ठीक है, यानी ये canal से जाएंगे और इरिगेशन करेंगे कहाँ तक, वो जहाँ आपको इरिगेट करना है, जहाँ पर जिस क्रॉप में आपको इरिगेशन देना है. तो दिस प्रोवाइड्स एडिक्वेट इरिगेशन टू ऑल फील्ड्स, एंड व्हेन द वाटर सप्लाई इज शॉर्ट है, देन ईच फील्ड और ग्रुप ऑफ फील्ड आर गिवन वाटर बाय द रोटेशन. गॉट इट. सेकेंड, टैंक्स से भी हम कर सकते हैं. टैंक्स हैं या स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर्स है विच कैच एंड स्टोर द run of smaller catchment areas. तो small dams हैं, these are built below the higher elevations of the catchment areas. तो in the tanks में वो outflow होगा और control करेगा according to the availability of the water. Otherwise it causes an uneven distribution of water. ठीक है, तो main जो drawbacks है uneven distribution of irrigation के, mainly shortage of water हो जाएगा. ठीक है, so excessive use करेंगे at the top. नेक्स्ट जो है वो वेल्स के थ्रू है. अब वेल्स डग वेल्स भी हो सकते हैं और ट्यूब वेल्स भी हो सकते हैं. फिर रिवर लिफ्ट सिस्टम है. रिवर लिफ्ट सिस्टम मोर यूजफुल है इन दोज एरियाज वेयर कैनल फ्लो इज इनसफिशिएंट और इरेगुलर. कैनल फ्लो इनसफिशिएंट है, इरेगुलर है, इनएडिक्वेट वाटर रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पर ये सिस्टम ज़्यादा काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो रिवर वैली सिस्टम बोल सकते हो. रिवर वैली सिस्टम है, वो हमने शायद लिखा नहीं, तो रिवर वैली सिस्टम यू कैन राइट दैट. गॉट इट. ड्रिप एंड स्प्रिंकलर ये कॉमन है आजकल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे एरिया में ये ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम कॉमन है. ओके, ड्रिप में वाटर अवेलेबिलिटी आपको पता है कि ड्रिप सिस्टम और जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप ओवरहेड पाइप्स फॉर स्प्रेइंग वाटर एंड स्प्रिंकलर सिस्टम सेव ए लॉट ऑफ वाटर एंड मोर मीन्स मोर नेचुरली. ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप वाइज वाटर जाएगा एट द बेस ऑफ द प्लांट. ठीक है, जैसे प्लांट लगा हुआ है उसके बेस पे ही ड्रॉप वाइज वाटर जाएगा. एंड दूसरे में स्प्रिंकलर्स होंगे और स्प्रिंकलर से वाटर नेचुरली फॉर्म में सारे पौधों पे, सारे प्लांट्स में जाएगा. ओके, दे हाउएवर रिक्वायर पंपिंग सिस्टम ऑल्सो, एंड दीज मेथड्स आर वेरी कॉमन इन USA, ब्रिटेन, दैन यूरोप एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. हम लोग हमारे इधर भी एरिया में ये देखते हैं ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हैव यू हर्ड अबाउट दैट. वाटर जो अगमेंटेशन है उसको कम करने के लिए हाँ क्या करते हैं हम, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन नहीं हो पाती तो इट कैरीड आउट बाय द टू मेथड्स. एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, दूसरा वाटर शेड मैनेजमेंट है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करेंगे हम, रूफ से पाइप्स लेंगे और अंडरग्राउंड में ले लेंगे उन पाइप्स को, या डीप ड्रेनेज बनाएंगे
डीप टैंक्स बनाएंगे, उनमें ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आप उसको पूरा सीमेंटेड नहीं करेंगे तो द वाटर लेवल विल बी इंक्रीजेस। जैसे ही रेन आएगी तो रूफ से सारा वाटर अंदर आ जाएगा और वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वाटर लेवल को इंक्रीज नहीं कर रहे, वी वांट दैट वाटर, रेन वाटर वी वांट फॉर आवर पर्सनल यूज़, तो हम लोग उसको एक सीमेंटेड टैंक के अंदर भी स्टोर करके रख सकते हैं एंड फर्दर यूज़ के लिए उसको देन यूज़ करेंगे, ठीक है, फर्दर पर्पज़ के लिए। देन सेकेंड है वाटर शेड मैनेजमेंट। स्मॉल चेक जो चेक डैम्स है आर बिल्ट इन द watershed areas to increase the perlocation of water into ground, reduce flow of rain water and prevent soil erosion। इनके लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम ले सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स। Now next we can take the cropping patterns. So let us revise this cropping patterns। जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है, these are the models of raising crop which help in obtaining maximum benefit from the same piece of land. It reduce risk of mainly crop failure, disease and infestation. And these common types of cropping patterns are mixed cropping है, intercropping है and crop rotation है. So let us discuss them. So let us start the mixed cropping, ठीक है। Farming is an agriculture process of harnessing solar energy, आपको पता है, in the form of economic produce of plants and animals। and जो Indian farmers है, they depend great deal on the monsoon rain for water, ठीक है। कहाँ मीन्स फार्मर्स है इंडिया के कहाँ डिपेंड है, मेनली मानसून रेनफॉल पे ही डिपेंड है। समटाइम्स क्या होगा, मानसून समटाइम्स ब्रिंग वेरी हैवी रेन एंड कॉजेस फ्लड्स, ठीक है। देन समटाइम्स देयर आर ड्राई स्पेल्स विच लीड टू ड्रॉट कंडीशंस, ठीक है। सो ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रेन वाटर इन ए पर्टिकुलर सीजन इज नॉट डिपेंडेबल, okay। Therefore the small and marginal farmers, particularly in the rain fed regions, cannot take place the risk of growing specialized crops also. They prefer a farming system that is called mixed cropping, and which is the practice of growing of two or more crops simultaneously in the same field. So we can say mixed cropping is the practice of growing two or more crops simultaneously in the same piece of land. For example, we can grow maize and urad bean. So maize plus urad bean. So these are the you can say crop combination used in mixed cropping, ठीक है। तो maize and urad bean ले लिया, cotton and मूंग bean है, then groundnut and sunflower है, sorghum and pigeon pea है, okay। and another है wheat है plus chickpea, then barley plus chickpea है, wheat है plus mustard है। सो ये जो है मेनली क्रॉप कॉम्बिनेशंस है जो मिक्स क्रॉप में यूज़ की जाती है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप्स फॉर मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्या क्राइटेरिया होगा कि हम मिक्स क्रॉप को सेलेक्ट करें, ठीक है। सो क्राइटेरिया होगा कि वाइल सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप इज मेड फॉर द मिक्स क्रॉपिंग, दैन टू क्राइटेरिया शुड बी मेंटेन। वो कौन कौन से हैं, एक तो एक ही डिफरेंट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन टुगेदर आर सो सिलेक्टेड दैट द प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन क्रॉप दैट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द अदर क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल है, इफ ए सीरियल क्रॉप जैसे वीट इज ग्रोन अलॉन्ग विद द लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे कोई भी पल्स ले लिया, कोई बीन ले लिया या कोई ग्राम ले लिया, ठीक है। देन द अपटेक ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल by the cereal crop, it is complemented by nitrogenous fixing legume, ठीक है। and this has two advantages, एक तो fertility of the soil increase हो जाएगी, दूसरी ultimately yield of the crop is also improved, ठीक है। yield भी improved होगी और fertility भी increase होगी, क्यों, क्योंकि NPK fertilizers हैं वो ज़रूरी है plants के लिए। so nitrogen जो gaseous form है that will be changed into its
कंपाउंड फॉर्म, ठीक है, यूजेबल फॉर्म में। तो एटमॉस्फेरिक गैस को कौन चेंज करेगा? लेग्यूमिनस बैक्टीरिया। जो लेग्यूमिनस बैक्टीरिया हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, ग्राम या पी में प्रेजेंट है, तो वो उसको सप्लीमेंट कर देंगे, नाइट्रोजन दे देंगे। सेकेंड क्या है? केयर इज टेकन टू सेलेक्ट क्रॉप्स दैट डू नॉट compete with other for light, nutrient and water। ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि जो दूसरी क्रॉप लगा रहे हो वो compete ना करे एयर के लिए, लाइट के लिए या फिर वाटर के लिए, ठीक है। ऐसी क्रॉप आप लेंगे जो कि कंपटीशन नहीं करेगी, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वन क्रॉप इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड अदर इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। एक का ड्यूरेशन लॉन्ग होगा तो दूसरे का शॉर्ट होगा। Thus, if one crop fails due to the shortage of moisture or nutrients, the other crop can cover the risk of complete failure। ठीक है, एक क्रॉप हो सकता है खराब हो जाए तो दूसरा है वो नहीं हो, ठीक है। देन वन क्रॉप इज टॉल ग्रोइंग एंड अदर इज शॉर्ट ग्रोइंग, ऐसा होना चाहिए, एक ज़्यादा लॉन्ग है तो एक छोटी है, ठीक है। Thus, if one crop बोल सकते हो तो कंपोनेंट है मेनली क्रॉप्स के जो मिक्स क्रॉप में यूज हो रहे हैं हैव डिफरेंट कैनोपी, यानी छोटे बड़े छोटे इस तरह से डिफरेंट कैनोपी होगी। एंड आपको पता है कैनोपी क्या होती है? स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स है, स्टेम्स है, फ्लावर्स है, फाउंड अबव द ग्राउंड, ठीक है। वो बाहर की जो कैनोपी है उसको बोलेंगे कैनोपी। मीन्स द क्रॉप कैनोपी मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स फाउंड अबव द ग्राउंड, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। नाउ इफ वन क्रॉप इज डीप रूटेड तो अदर हैज शेलो रूट होगी, एक की रूट डीप में जाएगी तो दूसरे की शेलो में जाएगी, ठीक है। और क्या बात ध्यान रखेंगे कि वन क्रॉप नीड्स कंपेरेटिवली लेस वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स देन द अदर। एक को लेस चाहिए, वाटर भी लेस चाहिए, न्यूट्रिएंट भी लेस चाहिए और दूसरे को ज़्यादा चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। नाउ एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग? एक्चुअली एडवांटेज क्या है कि जो रिस्क है, risk of total crop failure due to uncertain monsoon that is reduced हो जाएगा। मीन्स फेलर पूरी की पूरी क्रॉप फेलर नहीं होगी मानसून की वजह से, हो सकता है एक फेलर हो जाए एंड अदर विल प्रोवाइड गुड यील्ड फॉर अस, ठीक है। सेकेंड ये है कि फार्मर्स टेंड टू हार्वेस्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस सच एज सीरियल है, पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, फोडर है, to meet the various requirements of family or of an agriculture farm. Due to complementary effect of component crops, yield of both the crop is increased. Wheat and gram है तो दोनों की yield ही increase होगी. Fertility of the soil is improved by growing two crops simultaneously and chances of pest infestation are greatly reduced. So ये सारे importance हैं किसके? Mixed cropping के। नाउ नेक्स्ट ले लेंगे हम इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग आपको पता है इंटरक्रॉपिंग जो है इज ए प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन ए सेम फील्ड इन द डेफिनेट रो पैटर्न्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। उसको हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे इधर एक रो हो गई वीट की, इधर दूसरी रो हो गई किसी दूसरे प्लांट की, ठीक है। इस तरह से इंटरक्रॉपिंग होगी, ओके। नाउ डिफरेंस भी आपको बता देंगे, दोनों का डिफरेंस यू कैन राइट ऑल्सो, ओके। दोनों में डिफरेंस क्या है इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग में। अब जो प्रैक्टिस ऑफ इंटरक्रॉपिंग है अडोप्टेड बाय स्मॉल प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, द प्रैक्टिस ये मेनली यही होगा, इट विल बी इंटरक्रॉपिंग इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग बोल सकते हो आप। ऑल द क्रॉप कॉम्बिनेशंस इन मिक्स क्रॉपिंग कैन बी ऑल्सो बी प्रैक्टाइज्ड इन इंटरक्रॉपिंग। दोनों को हम जो भी मिक्स क्रॉपिंग में ले रहे हो उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में, बट रॉ पैटर्न्स है वो डेफिनेट होगा, जैसे कि 1:1 हो गया रॉ पैटर्न, ठीक है। देन 1:2 हो गया, एक रो वीट की है, जैसे ये दो ले लिया आपने मेज एंड उड़द बीन है, तो मेज़ की रो एक हो गई और दूसरी उड़द की है। दूसरा फर्स्ट मेज़ की है तो 2 रो किसकी है? उड़द बीन की है, ठीक है। थर्ड इस तरह से हम पैटर्न ले सकते हैं, 1 रो तो अपनी सोरगम की है और 3 रोज है वो पिजन पी की है, तो 1:3। इस तरह से आप रोल होगे और मेन क्रॉप होगी आफ्टर 1 क्रॉप ऑफ द मेन क्रॉप, इट मीन्स ऐसे होगा, ठीक है। 1, 2, 3 रोज ऑफ इंटरक्रॉपिंग कैन बी
ड्रॉन अकॉर्डिंग टू दैट 1, 2 एंड 3 ऐसे आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग के एडवांटेज भी बहुत है कि इट मेक्स बेटर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सनलाइट, लैंड एंड वाटर, तीनों का यूज करेंगे, वो सनलाइट, लैंड एंड वाटर का बेटर यूज होगा। सॉइल इरोजन इज इफेक्टिवली अरेस्टेड, ठीक है। देन सिंस द सीड्स ऑफ टू क्रॉप्स आर नॉट मिक्सड बिफोर सोइंग, फर्टिलाइजर्स कैन बी एडेड एज पर द नीड ऑफ द क्रॉप ऑल्सो, ठीक है। दोनों क्रॉप्स को एक साथ नहीं मिलाएंगे, मिक्स नहीं करेंगे, सो हमको जैसे जैसे जिस क्रॉप को जो चीज़ ज़रूरत है उस वो फर्टिलाइज़र वी कैन प्रोवाइड दैट स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र टू दैट स्पेसिफिक क्रॉप, ऐसे हम दे देंगे, प्रोवाइड करेंगे। सिंस जो नीड है maturity period of these crops vary, the different crops can be harvested and threshed separately, अलग अलग हम थ्रेश करेंगे और हार्वेस्ट करेंगे। the produce of each crop can be marketed and consumed separately, तो ये दोनों, ये सब चीज़ें में हम लोग ध्यान रखेंगे। तो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, क्या होती है इंटरक्रॉपिंग। सो लेट अस राइट, ठीक है, what is intercropping, you can write second one, intercropping, second intercropping। इंटरक्रॉपिंग में हम सेम क्रॉप यूज कर सकते हैं जो मिक्स क्रॉपिंग में किया, बट रो वाइज करेंगे, वन रो एंड अनदर रो सेपरेट लेंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं, इंटरक्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, it is the practice of growing, intercropping is the practice of growing, yeah, it is the practice of growing two or more crops simultaneously, two or more crops simultaneously, two or more crops simultaneously in a same field, in a same field, in a same field, ठीक है, in definite row patterns, in definite row patterns, definite row patterns, you can write that, definite row patterns, row patterns के अकॉर्डिंग होगा, with the objective of increasing, with the objective of increasing, with the objective of increasing productivity per unit area, so we can write here productivity per unit area, productivity per unit area, ओके। सो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे, इसमें दो या दो से ज़्यादा क्रॉप लगा सकते हैं साइमल्टेनियसली, सेम फील्ड में लगाएंगे, लेकिन रो वाइज लगाएंगे, डेफिनेट रो पैटर्न होगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी पर यूनिट एरिया के हिसाब से। गॉट इट, एडवांटेजेस बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। नाउ थर्ड ले लेते हैं हम, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में इफ़ वी ग्रो क्रॉप्स कंटिन्यूसली इन द सेम फील्ड फॉर मैनी ईयर्स, तो इट रिजल्ट्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, एक ही बार में आप एक ही क्रॉप बार बार उसी फील्ड में लगा रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है डिप्लेशन मीन्स डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। सेकेंड, बिल्डअप ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट हो सकता है। दिस डिमांड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। सो क्रॉप रोटेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लांट सेसेशन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन। द क्रॉप रोटेशन में बी ऑफ 3 टाइप्स है, 1 ईयर क्रॉप रोटेशन बोलते हैं,
जिसमें हो गई आपकी मेज़ एंड मस्टर्ड, ठीक है। मेज़ के बाद मस्टर्ड लगाएंगे आप, फिर राइस लगाएंगे, राइस के बाद में वीट लगाएंगे, ठीक है। टू ईयर क्रॉप रोटेशन में आप मेज़, मस्टर्ड, शुगर केन, फेनुग्रीक इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। पहले मेज़, फिर मस्टर्ड, फिर शुगर केन, फिर फेनुग्रीक, मेथी जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर मेज़, फिर पोटैटो, फिर शुगर केन, फिर पीस। 3 इयर्स रोटेशन में आप कॉटन है, ओट है, फिर शुगर केन है, फिर उसके बाद पीज है, मेज़ है, वीट है, ठीक है। ऐसे आप करेंगे। एंड जो क्रॉप रोटेशन में है, आप जो लेग्यूम्स है इंक्लूडेड क्रॉप रोटेशन प्रोग्राम है, मोस्ट कॉमनली लेग्यूमेंस यूज़ होते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं दे विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो थर्ड हम ले लेते हैं क्रॉप रोटेशन। So that crop rotation is the practice of growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession. Types of crop rotation है depend on the duration of the crop, ठीक है। So duration accordingly type of crop हो जाएगी। जैसे type of crop first है 1 year rotation, ठीक है। तो first लिख लेते हैं 1 year rotation, सेकेंड 2 ईयर रोटेशन एंड थर्ड है 3 ईयर रोटेशन। अब जो 1 ईयर रोटेशन है, जो टाइप ऑफ क्रॉप है, तो वी कैन राइट दैट मेज मस्टर्ड। 1 ईयर क्रॉप में पहले मेज, 6 मंथ में मेज, देन आफ्टर दैट मस्टर्ड। तो 1 ईयर क्रॉप में ये मेनली कंपोनेंट क्रॉप्स लेंगे जो होंगी क्रॉप रोटेशन के अंदर। मेज होगी, मस्टर्ड होगी, देन राइस एंड वीट हो जाएगा। राइस होगा, उसके बाद वीट, राइस देन वीट, ठीक है। सेकेंड जो क्रॉप रोटेशन होगा वो 2 ईयर रोटेशन होगा। सेकेंड 2 ईयर रोटेशन, ठीक है। 2 ईयर रोटेशन में 2 ईयर्स में रोटेट होगी वो क्रॉप, ओके। जैसे फर्स्ट मेज मस्टर्ड, फर्स्ट तो मेज लिया, मस्टर्ड लिया, ठीक है। मेज मस्टर्ड के बाद में शुगर केन, देन फेनुग्रीक, शुगर केन, आफ्टर दैट फेनुग्रीक, मेथी जिसको बोलते हैं। तो शुगर केन के बाद में मेथी, फेनुग्रीक, ठीक है। ऐसे ही मेज है, पोटैटो है, शुगर केन है, पी है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड क्रॉप, ये फर्स्ट है, सेकेंड नहीं, सेकेंड विल राइट लाइक दैट, ये सेकेंड, ठीक है। सो सेकेंड में क्या लिखेंगे हम? मेज, पोटैटो, शुगर केन, मेज, पोटैटो, शुगर केन, और साथ में लास्ट में पी ले लेते हैं, ठीक है। सो पी ले लेंगे। नाउ लास्ट जो है ये 3 ईयर होगी। जो 3 ईयर क्रॉप रोटेशन में मैंने बताया 3 ईयर रोटेट करेगी। जैसे राइस है, वीट है, मूंग है, मस्टर्ड है, शुगर केन है, बरसीम है, ठीक है। सो यू कैन राइट द थर्ड वन ऑल्सो। ये तो फर्स्ट और सेकेंड मैंने ये लिखवा दिया है, ठीक है। सो आपको बताया कि लेग्यूम्स ज़्यादातर होंगे, क्योंकि लेग्यूम से क्या होगा, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो इंक्रीज होगी। अब मेनली सिलेक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन करने के लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। व्हाट की अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर थ्रू रेन और इरिगेशन, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कितनी है रेन के थ्रू या किसी जैसे इरिगेशन के थ्रू। सेकेंड क्या रखना है, स्टेटस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, मीन्स सॉइल का स्टेटस क्या है, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सी उसमें प्रेजेंट है, ओके। So these are the main thing. Availability of inputs such as fertilizer है, pesticides है, human powers है, machine powers है, जो भी है। Duration of crop rotation है, short है या फिर long है। Then marketing and processing facilities है। अब crop rotation से क्या क्या advantages हैं? It control pest and weeds control करेगा, क्योंकि most जो pathogens हैं they survive on the crop residue, but only for the limited time, and most pathogens do not infect multiple crops. सब सारी क्रॉप्स को नहीं खा सकते, बाय नेचुरली ब्रेकिंग होगी साइकिल वीड्स की ने और इंसेक्ट्स की, और डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। सो कॉस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स है वो भी रिड्यूस्ड हो जाएगी,
ठीक है। देन सेकेंड जो है, क्रॉप रोटेशन reduces द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन सप्लाई है वो मेंटेन हो रही है क्रॉप में, व्हेन लेग्यूमिनस क्रॉप्स है वी विल ग्रोइंग अल्टरनेटली, तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। सेवरल क्रॉप्स में बी ग्रोन इन सक्सेशन विद ओनली वन सॉइल प्रिपरेशन, जैसे फ्लोइंग किया और बाकी क्रॉप से लगा दिया, मेज लगा दिया, देन लेफ्ट हो गया, वीट के लिए छोड़ दिया, वीट लगा दिया, आफ्टर दैट वीट लगाया मेज के बाद। बाय अल्टरनेशन बिटवीन डीप एंड शेलो रूटेड क्रॉप्स द सॉइल मे बी utilized or you can say utilized more comparatively, ठीक है, मोर कंप्लीटली यूटिलाइज्ड हो जाएगी जो सॉइल होगी, क्योंकि अल्टरनेट है डीप सॉइल और डीप, कुछ तो डीप रूटेड है, कुछ शैलो रूटेड क्रॉप्स है, तो सॉइल में भी यूटिलाइज्ड मोर कंप्लीटली। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट होगा, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने क्रॉप रोटेशन कंप्लीट कर लिया, सो प्लीज़ मेक द नोट्स ऑफ दीज। क्रॉप रोटेशन है, इरीगेशन है, टाइप्स ऑफ इरीगेशन है, एंड विच क्रॉप्स वी आर यूजिंग इन क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, सो वी कैन राइट दैट। एंड विद दिस, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।